conference. The recording has started. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यानो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तकत च संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है कि आत्मा जो ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसा आत्मा का शुद्ध स्वरूप और ऐसा शुद्ध स्वरूप जो त्रिकाल शक्ति रूप सामर्थ वाला है, उसको आचार्य भगवान समयसार कहते हैं। समयसार यानी आत्मा का शुद्ध स्वरूप मैं दर्शाऊंगा, ऐसी मूल प्रतिज्ञा आचार्य भगवान ने की है। ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? तो आत्मा के ज्ञानानंद त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का जब तक लक्ष्य नहीं होता, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में अज्ञानी करता है, मोह राग द्वेष उसका कर्म है। अज्ञानी करता है, उसका अज्ञान उसका कर्म है। ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए आचार्य भगवान ने कर्ता कर्म अधिकार की रचना की। उसमें गाथा 75 पर अमृत चंद्राचार्य देव ने
49 कलश की रचना की है। 49 गाथा का विषय था कि जो ज्ञानी है ज्ञानी को पहचानना है तो उसका लक्षण क्या है। तब आचार्य भगवान ने बताया कि जो आत्मा द्रव्य कर्म नो कर्म के परिणाम का कर्ता नहीं बनता है, यानी द्रव्य कर्म पर द्रव्य है, नो कर्म भी पर द्रव्य है, उसके परिणाम का जो कर्ता नहीं बनता है, लेकिन सिर्फ द्रव्य कर्म के परिणाम को जानता है, नो कर्म के परिणाम को जानता है, ऐसा जीव ज्ञानी है। तो जो द्रव्य कर्म नो कर्म उदय रूप है उसमें जो जुड़ जाए और अज्ञान और मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो जाए तो वो जीव अज्ञानी है। ये बात 75 गाथा में की थी। उसको टीकाकार आचार्य यानी अमृतचंद्राचार्य देव श्लोक की रचना करके वही बात दूसरे तरीके से दिखाते हैं। 49 गाथा का भावार्थ देखिए। भावार्थ शुरू करने से पहले फिर से गुजराती में आ कर्ता कर्म अधिकार है। आचार्य भगवंते पहला एम कह્યું હતું કે અજ્ઞાની જીવ કર્તા થઈને અજ્ઞાન અને મોહ રાગ દ્વેષને કરે છે। पंचोतेर गाथाમાં વિષય એવો લેવામાં આવ્યો કે શિષ્યએ પૂછ્યું કે અજ્ઞાનીને તો અજ્ઞાન અને મોહ રાગ દ્વેષ થાય છે, પણ અમારે જ્ઞાનીને ઓળખવા હોય તો જ્ઞાનીને ઓળખવા કઈ રીતે? આ જ્ઞાની છે એનું લક્ષણ શું? તો 75 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે જે આત્મા
દ્રવ્ય કર્મના પરિણામને અને નો કર્મના પરિણામને કરતો નથી. એટલે કે દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મના પરિણામમાં જોડાઈને મોહ રાગ દ્વેષને ઉત્પન્ન કરતો નથી, પરંતુ જાણે છે. એટલે કે દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મના પરિણામને માત્ર જાણે તો તે જ્ઞાની છે. જાણવું જીવનો સ્વભાવ છે. જાણવું એ વિભાવ નથી. જીવ સ્વને જાણે તો પણ દોષ નથી, પરને જાણે તો પણ દોષ નથી. પણ પરને જાણતાની સાથે એમાં હું પણ કરે તો દર્શન મોહ ઉત્પન્ન થાય અને એ પદાર્થોમાં હિત બુદ્ધિ નાખે તો ચારિત્ર મોહ પ્રગટ થાય. તો દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મને જાણવાય દોષ નથી, પણ એમાં જોડાઈને પરિણમી જવું એ દોષ છે. તો જ્ઞાની કોને કહ્યો? જ્ઞાનીનું લક્ષણ શું? તો કે જ્ઞાની દ્રવ્ય કર્મ ને નો કર્મને, એટલે કે દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મના પરિણામને માત્ર જાણે છે. એ જ વાત વિશેષ સમજાવવા માટે ટીકાકાર આચાર્ય અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ 49 નંબરનો શ્લોકની રચના કરે છે. એ 49 શ્લોકનો ભાવાર્થ જે સર્વ અવસ્થાઓમાં વ્યાપે, જે એટલે દ્રવ્ય. અહીંયા દ્રવ્યનો અર્થ છે આત્મા, કારણ કે આત્માની મુખ્યતાથી વાત ચાલે છે. ત્રિકાળ શુદ્ધ આત્મા સર્વ અવસ્થાઓ માં વ્યાપે તે તો વ્યાપક છે. તો દ્રવ્ય જે છે એને વ્યાપક કહ્યો. જો દ્રવ્ય વ્યાપક હોય તો પર્યાય શું છે? તો કે વ્યાપ્ય છે. તો દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે કયો સંબંધ છે? તો કે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. આ વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ શા માટે બતાવ્યો? તો કે આચાર્ય ભગવંત એમ કહેવા માગે છે કે જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ હોય છે. દ્રવ્ય કેવું છે? વ્યાપક. પર્યાય વ્યાપ્ય.
દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચેનો સંબંધ તો કે વ્યાપ્ય વ્યાપક જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપકપણું છે જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપકપણું છે ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે. એમ સિદ્ધ કરવું છે. હવે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય ક્યાં? તો કે મારો આત્મા વ્યાપક થઈને પરદ્રવ્યના પરિણામમાં વ્યાપી શકતો નથી. એટલે એક દ્રવ્ય વ્યાપક અને બીજા દ્રવ્યની પર્યાય વ્યાપ્ય એવું 3 કાળમાં બની શકતું નથી. માટે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ માત્ર દ્રવ્ય અને પોતાની પર્યાય વચ્ચે હોય છે. મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા મારી શુદ્ધ પર્યાયમાં વ્યાપે તો મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા વ્યાપક છે અને મારી શુદ્ધ પર્યાય વ્યાપ્ય છે. ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે. પણ જો મારો આત્મા કર્મના ઉદયોને દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મના ઉદયોને માત્ર જાણે નહીં અને જો દ્રવ્ય કર્મ નવકર્મમાં જોડાઈ જાય તો મારા ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ પર્યાય સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપકપણું નથી. તો કે આમ કેમ કહ્યું? ફરીવાર દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મનો ઉદય આવ્યો. જ્ઞાની હોય તો માત્ર એને જાણે પણ એમાં જોડાય નહીં. અજ્ઞાની હોય તો દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા. એ મોહ રાગ દ્વેષ કોની પર્યાય છે? તો કે મોહ રાગ દ્વેષ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માની પર્યાય નથી. તો કે આવું કેમ કહ્યું? તો કે અશુદ્ધ પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ છે
એ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થઈ છે, માટે મોહ રાગ દ્વેષ રૂપની પર્યાય નૈમિત્તિક પર્યાય છે, નિમિત્તના સંગમાં થઈ છે, માટે એ પર્યાય દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ અજીવ છે, તો મોહ રાગ દ્વેષની પર્યાય પણ અજીવ છે, કારણ કે અજીવના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થઈ છે, અને અજીવ તો પરદ્રવ્ય છે, તો પરદ્રવ્યમાં મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા વ્યાપી શકતો નથી. તો કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ યથાર્થ ક્યાં છે? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધ જીવ અને પરદ્રવ્યની પર્યાય વચ્ચે તો વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી, માટે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી, પણ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા અને વ્રત તપના શુભ ભાવ વચ્ચે પણ વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. વ્રત તપના શુભ ભાવ પુણ્ય કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયા, તો કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયા, તો કર્મનો ઉદય તો અજીવ છે, અજીવમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયા, માટે એ પરિણામ પણ અજીવ છે, અને એ પરિણામ પણ પૂતગલના છે. એ પરિણામમાં જીવનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ વ્યાપતો નથી. કેમ? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં વિભાવને કરી શકે એવો કોઈ સ્વભાવ નથી, માટે જ્ઞાની પરદ્રવ્યના પરિણામનો તો કરતા નથી, પણ વિભાવનો કરતા પણ નથી. તો જ્ઞાની શેમાં વ્યાપે? તો કે જ્ઞાનીનો જ્ઞાયક સ્વભાવ શુદ્ધ પરિણામમાં વ્યાપે છે. કેમ? તો કે જ્ઞાનીનો સ્વભાવ પણ શુદ્ધ અને એને અનુસરીને પ્રગટ થયેલા પરિણામ પણ શુદ્ધ. શુદ્ધ સ્વભાવ વ્યાપક થઈને શુદ્ધ પર્યાયમાં વ્યાપ્ય થાય છે, તો જ્ઞાની કોનો કરતા? તો કે શુદ્ધ પરિણામનો કરતા. જ્ઞાની કેવો થયો? તો કે પેલા અજ્ઞાનીને કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિ હતી, એ કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટી ગઈ, એટલે કે અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષ છૂટી ગયા. જ્ઞાની સ્વભાવથી શુદ્ધ અને વર્તમાન પર્યાય પણ શુદ્ધ. સ્વભાવ ત્રિકાળ શુદ્ધ, વર્તમાન પર્યાય ક્ષણિક શુદ્ધ. સ્વભાવ ત્રિકાળ શુદ્ધ
એની સાથે એક સમયની વર્તમાન શુદ્ધ પર્યાય અભેદ છે. તો જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે અને ત્યાં કર્તા અને કર્મ અભેદ જોવા મળે છે. પણ અશુદ્ધ પરિણામ સાથે જીવને કરતા કર્મ સંબંધ નથી. કેમ? તો કે સ્વભાવ શુદ્ધ છે ને પર્યાય અશુદ્ધ છે. અશુદ્ધ પર્યાય ઉપર તરે છે, સ્વભાવમાં અભેદ નથી, સ્વભાવમાં પ્રવેશી શકતી નથી. फिर से हिंदी में देखो भावार्थ. जो सर्व अवस्था में व्यापे, तो सर्व अवस्था में कौन व्यापता है? द्रव्य. यहाँ 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य लेना है? तो कि जीव द्रव्य. जीव द्रव्य कैसा है? तो कि स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध है. तो द्रव्य प्रथम सामान्य न्याय बताया, बाद में जीव में ज्ञानी को कहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है और अज्ञानी को कहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है, वो दिखाएंगे. तो सामान्य न्याय में क्या बताया कि जीव यानी त्रिकाल शुद्धात्मा सर्व अवस्थाओं में व्यापे, वो जीव द्रव्य तो व्यापक है. तो व्यापक त्रिकाल शुद्ध द्रव्य. अब व्याप्य क्या है? तो कि जो वर्तमान अवस्था है वो व्याप्य है. आगे देखो क्या लिखा. और कोई एक अवस्था विशेष, कोई एक अवस्था यानी वर्तमान अवस्था, तो वर्तमान एक अवस्था विशेष वो व्यापक का यानी द्रव्य के शुद्ध स्वभाव का व्याप्य है. तो व्याप्य व्यापक संबंध किसके बीच में है? तो कि व्याप्य व्यापक संबंध द्रव्य और पर्याय के बीच में है. द्रव्य और कौन सी पर्याय? तो कि द्रव्य और वर्तमान पर्याय के बीच में. पूर्व पर्याय तो चली गई, भविष्य की पर्याय आई नहीं, और परद्रव्य की पर्याय में जीव व्यापक हो नहीं सकता. तो अभी बची वर्तमान पर्याय, भूत की पर्याय चली गई, भविष्य की पर्याय आई नहीं, परद्रव्य की पर्याय में जीव व्याप नहीं सकता.
तो कौन सी पर्याय बची? स्वद्रव्य की पर्याय। स्वद्रव्य में कौन सी पर्याय? तो कि वर्तमान पर्याय। तो व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ है? तो कि जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव और वर्तमान पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। ये व्याप्य व्यापक संबंध क्यों बताया? तो कि ऐसा सिद्ध करना है कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहीं सही कर्ता कर्म प्रवृत्ति है। और ये व्याप्य व्यापक संबंध वो ऐसा न्याय आचार्य भगवान ने दिया कि तू 3 काल में कभी भी ऐसा नहीं कह पाएगा कि द्रव्य और वर्तमान पर्याय के बीच में जो व्याप्य व्यापक संबंध है उसके अलावा दूसरे स्थान पर व्याप्य व्यापक संबंध हो सकता है, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। वर्तमान जेवर है उसमें व्यापा हुआ सोना, तो व्यापक सोना और व्याप्य वर्तमान जेवर की पर्याय। तो पहले ये बताया कि व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ होता है। अब प्रयोजन क्या है? तो कि प्रयोजन ज्ञानी का लक्षण क्या? ये सिद्ध करना है। तो ज्ञानी विभाव रूप पर्याय में व्यापक होते हैं कि शुद्ध पर्याय में व्यापक होते हैं। तो कि ज्ञानी शुद्ध पर्याय में व्यापक है और शुद्ध पर्याय उसकी व्याप्य है। अशुद्ध पर्याय में ज्ञानी व्याप्ते नहीं, ऐसा क्यों कहा? तो कि अशुद्ध पर्याय और आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव अभेद नहीं है। अभेद क्यों नहीं है? तो कि विभाव उत्पन्न हुआ वो कर्म के उदय के लक्ष्य से हुआ है। आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके उत्पन्न नहीं हुआ। जो आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके जो पर्याय उत्पन्न होगी उसके साथ त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को व्याप्य व्यापक संबंध है। वो शुद्ध पर्याय के साथ ज्ञानी को कर्ता कर्म संबंध है। विभाव आत्मा के शुद्ध स्वभाव का कार्य नहीं है। शुद्ध स्वभाव का कार्य क्यों नहीं है? तो
कि विभाव निरपेक्ष कार्य नहीं है। निरपेक्ष कार्य क्यों नहीं है? तो कि कर्म का उदय में जुड़ने से ही विभाव की उत्पत्ति दिखने में आती है। तो विभाव में कर्म का उदय निमित्त है, इसलिए वो निरपेक्ष स्वतंत्र स्वयंभू परिणाम नहीं है। अब देखो आगे क्या बताया। कोई एक अवस्था विशेष यानी वर्तमान पर्याय वो व्यापक का व्याप्य है। व्यापक द्रव्य का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, व्याप्य वर्तमान शुद्ध पर्याय। तो व्यापक द्रव्य का शुद्ध स्वभाव और व्याप्य वर्तमान शुद्ध पर्याय। तो पहले व्याप्य व्यापकपना इसलिए बताया कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहाँ कर्ता कर्म सही प्रवृत्ति है। अब आगे, ऐसा होने से यानी व्याप्य व्यापक संबंध द्रव्य और वर्तमान पर्याय के बीच में होने से द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय, कौन सी पर्याय? वर्तमान पर्याय व्याप्य है। तो व्याप्य व्यापक संबंध है, वहाँ संबंध कैसा है? तो आगे बताया कि द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है। द्रव्य पर्याय के बीच में संबंध क्या बताया? द्रव्य और पर्याय उसके बीच में एक संबंध व्याप्य व्यापक, दूसरा संबंध कर्ता कर्म, तीसरा संबंध अभेद, चौथा संबंध अपृथक। द्रव्य से वर्तमान पर्याय भिन्न नहीं हो सकती। पांचवा संबंध द्रव्य पर्याय के बीच में तन्मयपना, पर्याय स्वभावमय हो गई। छठा संबंध द्रव्य पर्याय के बीच में तादात्म्य संबंध, पर्याय जैसा स्वभाव है ऐसे स्वरूपमय हो गई। सातवां संबंध अविनाभावी, जहाँ द्रव्य का शुद्ध स्वभाव वहीं वर्तमान पर्याय शुद्ध, जहाँ कर्ता कर्म संबंध है, जहाँ ज्ञानी है
तो ज्ञानी स्वभाव से शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध। और एक और संबंध, द्रव्य पर्याय, व्याप्य और व्याप्य दोनों का क्षेत्र समान है, एक क्षेत्र है। तो जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहाँ कर्ता कर्म संबंध है, वहाँ अपृथकपना है, अभेदपना है, तन्मयपना है, तादात्म्य संबंध है, अविनाभावी संबंध है, एक समान क्षेत्र है। ये सब बात किसके साथ बताना है? तो कि जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव और उसकी वर्तमान शुद्ध पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापकपना बताना है, कर्ता कर्मपना बताना है, अभेदपना बताना है, अपृथकपना बताना है, तन्मयपना बताना है, तदाकारपना बताना है, अविनाभावीपना बताना है और एक क्षेत्र अवस्था बताना है। कर्ता कर्म कहाँ है? जहाँ व्याप्य व्यापकपना है। ज्ञानी को कर्ता कर्म संबंध कहाँ है? जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ है? द्रव्य का यानी जीव द्रव्य का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव और उसकी वर्तमान शुद्ध पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है। तो अब आगे देखो, जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप या तो सत्व, वही पर्याय का आत्मा। द्रव्य का आत्मा और पर्याय का आत्मा भिन्न नहीं है। भिन्न क्यों नहीं है? तो कि द्रव्य का आत्मा त्रिकाल शुद्ध और पर्याय का आत्मा भी शुद्ध, दोनों का स्वरूप शुद्ध। जैसा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का सत्व है, जैसा त्रिकाल स्वभाव का स्वस्वरूप है, जैसा त्रिकाल शुद्धात्मा का स्वस्वभाव है, वैसे स्वस्वभाव को अनुसरण करके पर्याय प्रकट हुई। ऐसे द्रव्य पर्याय के बीच में कर्ता कर्मपना कहना है, व्याप्य व्यापकपना कहना है। क्या लिखा है? जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप यानी स्वस्वभाव रूप सत्व त्रिकाल शुद्धात्मा का सत्व क्या है? क्योंकि वो तो उसका सत्व तो शुद्ध है और उसको अनुसरण करके जो पर्याय प्रकट हुई उसका सत्व भी शुद्ध है।
ऐसा होने से दोनों का सत्व समान होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्ते हैं। दोनों का सत्व समान होने के कारण द्रव्य व्यापक होकर पर्याय में व्याप्य हो जाता है। तो क्या बताया? ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्ते हैं और पर्याय द्रव्य बड़े व्यापाती है। ऐसा व्याप्य व्यापकपणा ऐसा लिखा है। दान आदि का स्वभाव, अभिषेक पूजा का स्वभाव, स्वाध्याय का स्वभाव, वो स्वभाव में त्रिकाल शुद्धात्मा व्याप्ता नहीं है। वहाँ कर्ता कर्म प्रवृत्ति नहीं बतानी है। क्यों? स्वभाव उत्पन्न हुआ, वो तो कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न हुआ। आत्मा के शुद्ध स्वभाव में जुड़कर उत्पन्न नहीं हुआ। तो स्वभाव है वो द्रव्य का जैसा सत्व था ऐसा सत्व स्वभाव में नहीं है। द्रव्य का सत्व तो त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है और स्वभाव तो अशुद्ध पर्याय है। और ये अशुद्ध पर्याय उदय में जुड़ने से उत्पन्न हुई चारित्र मोह का दोष है। वहाँ कर्ता कर्म प्रवृत्ति नहीं बतानी है। तू व्यापक होकर तेरी शुद्ध पर्याय में व्याप जा। तो व्यापक होकर तेरी व्याप्यता कहाँ होनी चाहिए? तो कहाँ व्यापेगा? तो कि शुद्ध पर्याय में। ऐसा कहकर अज्ञानी की कर्ता कर्म प्रवृत्ति छुड़ाना है। अज्ञानी को लगता है ये मोह राग द्वेष मेरा परिणाम है, मैं उसका कर्ता हूँ। ये अज्ञानी की प्रवृत्ति छुड़ाना है। छूटेगी कब? तो मूल 75 गाथा में बता दिया कि द्रव्य कर्म नो कर्म का उदय उसको जो सिर्फ जानता है, द्रव्य कर्म नो कर्म को सिर्फ जानता है, वो ज्ञानी है। और 19 गाथा में बताया था, 19 गाथा में क्या बताया था? 19 गाथा से पर समय पढ़ा शुरू किया था बताने का। तो 19 गाथा में ये बताया था कि नो कर्मे कर्मे हूँ, शरीर नो कर्म, 8 प्रकार का द्रव्य कर्म, वो मैं हूँ। मेरे में 8 प्रकार के द्रव्य कर्म और 9 कर्म है। ऐसी बुद्धि
जहाँ तक है तब तक अज्ञानी रहेगा। ये 19 गाथा में बताया था। उससे विपरीत ज्ञानी है। अब आगे, अब ध्यान से सुनना। छठी लाइन है, आत्मस्वरूप में। अब आत्मस्वरूप का अर्थ क्या? तो पंडित जी ने ब्रैकेट में लिखा है, जिसकी सत्ता का अर्थ सत्व, भिन्न भिन्न है, ऐसे पदार्थों में नहीं होता। अतत् स्वरूप किसको कहा? कि द्रव्य का स्वभाव शुद्ध लेकिन पर्याय में अशुद्धता। तो द्रव्य के स्वभाव में जो सत्व है, ऐसा सत्व पर्याय में नहीं है। तो द्रव्य का सत्व भिन्न, पर्याय का सत्व भिन्न। तो जहाँ सत्व भिन्न है उसको अतत् स्वरूप कहा। अतत् स्वरूप यानी तेना जेवू नहीं, उन जैसा नहीं है। तो स्वभाव शुद्ध और पर्याय में अशुद्धता, तो दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न એટલે અતત स्वरूप। अब आगे, जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव हो। क्या कहा? व्याप्य व्यापक भाव है वहीं कर्ता कर्म भाव है। तो व्याप्य व्यापक भाव कहाँ है? तो क्या आत्मा का शुद्ध स्वभाव और उसकी शुद्ध पर्याय के साथ। लेकिन आत्मा का स्वभाव शुद्ध और पर्याय में अशुद्धता, वहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं कहा। दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है, दोनों अतत् स्वरूप है। तो जहाँ व्याप्य व्यापक भाव है वहीं कर्ता कर्म भाव है, और व्याप्य व्यापक भाव बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता। इसलिए शुद्ध द्रव्य को अशुद्ध पर्याय के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऐसा जो जानता है वो उद्गल और आत्मा को कर्ता कर्म भाव नहीं एम जानता है। उद्गल का दो अर्थ, आत्मा उद्गल के परिणाम के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, एक ऐसा अर्थ। दूसरा अर्थ,
उद्गल का लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ परिणाम विभाव। तो जीव जीव अधिकार में तो विभाव को अजीव का परिणाम कहा। तो अजीव तो परद्रव्य हो गया। तो जीव को अजीव के परिणाम के साथ यानी अशुद्ध परिणाम के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ऐसा जो जानता है कैसा जानता है कि आत्मा को परद्रव्य के परिणाम के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ऐसा यथार्थ जिसको ज्ञान हुआ उसको द्रव्य कर्म नो कर्म का लक्ष्य छूटकर आत्म स्वभाव का लक्ष्य होने से वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी हुआ तो अज्ञानी की जो कर्ता कर्म प्रवृत्ति थी वो छूट गई और वो जीव ज्ञाता दृष्टा यानी जानन देखन वाला जगत का साक्षी हो गया। साक्षी हो गया उसका अर्थ विश्व के पदार्थ को जाना लेकिन उसमें जुड़ा नहीं। तो इस प्रकार कर्ता कर्म प्रवृत्ति छुड़ाई। कैसी तरह छुड़ाई कि ज्ञानी का लक्षण जानकर वो भी ज्ञानी बन गया। तो अज्ञान रूप कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट गई। तो ये हुआ 49 नंबर का श्लोक। फिर से 2-3 मिनट में गुजराती में बात लेते हैं। અહીંયા એટલું કહેવું છે કે અતત સ્વરૂપ કોને કહેવાય? તો કે બંનેનું સ્વરૂપ સમાન ન હોય તો અતત સ્વરૂપ કહેવાય। જેમ કે આત્મા સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે અને પર્યાયમાં મોહ રાગ દ્વેષ છે। તો સ્વભાવ શુદ્ધ અને પર્યાય અશુદ્ધ, તો બેનું સ્વરૂપ સમાન નથી, બંનેનું સત્વ સમાન નથી। માટે જ્ઞાની અશુદ્ધ પર્યાયમાં વ્યાપતા નથી। જ્ઞાનીએ તો અનુભૂતિના કાળે મોહ રાગ દ્વેષ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવથી ભિન્ન છે એવું યથાર્થ અને શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કર્યા પછી જ્ઞાની અશુદ્ધતામાં ક્યાંથી વ્યાપે? માટે જ્ઞાનીને અશુદ્ધ પર્યાય સાથે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી। તો જ્ઞાની કેવા છે? તો કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે। માત્ર આખા વિશ્વને જાણે પણ એમાં જોડાઈને મોહ રાગ દ્વેષને ઉત્પન્ન કરતા નથી। સમય થયો છે। થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ, બધાને જય જિનેન્દ્ર, થેન્ક યુ। વર્તમાન 24 થોડું સંક્ષિપ્તમાં લેશો ગુજરાતીમાં પ્લીઝ? હા, કાલે લેશું। આગળ જતા હા, થેન્ક યુ વેરી મચ હાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ, જય જિનેન્દ્ર। હા, વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે
બિરાજતા 20 વિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટિના તારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનધારી મા સમર્થાચાર્ય, આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જ્ઞાનીની કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વ દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ, બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र राजूभाई, सभी को जय जिनेन्द्र. જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. राजूभाई. જય જીનેન્દ્ર.